بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں۔ مہنگائی سے عوام شدید پریشانی کا شکار ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بڑھتی مہنگائی پر تاجر برادری سراپا احتجاج ہے۔ صدر انجمن تاجران امجد عظیم کہتے ہیں کہ حکومت عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے کسی قسم کا کوئی کام نہیں کر رہی۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندہ شاہد محمود سے۔ جی شاہد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے حکومت کی جانب سے ایک بار پھر جو ہے پیٹرولنگ مصنوعات جو ہے مہنگی ہونے کا اندیشہ ہے آج، جو کیونکہ اوگرا کی جانب سے جو ہے سمری بھیجی گئی ہے پیٹرول سمیت جو ہے ڈیزل کی مصنوعات پہ۔ تاجر برادری اس پہ کیا کہتی ہے؟ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے بات بھی ہم جیسا کیا کہنا چاہیں گے اگر یہ پیٹرول ایک بار پھر مہنگا ہوتا ہے تو کتنے مہنگائی بعد میں ہوتی ہے تمام جو مصنوعات چیزیں ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں تو اب کچھ کہنے سننے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا۔ خان صاحب بھی بے بس نظر آتے ہیں۔ بجلی کی قیمت ہر ہفتے بڑھ رہی ہے، پیٹرول کی قیمت ہر 15 دن بعد بڑھ رہی ہے۔ یہی خان صاحب کنٹینر سے ہمیں درس دیتے تھے اور ہم مانتے تھے ان کی باتیں کہ اگر یہ چیزیں بڑھتی ہیں تو وزیر اعظم چور ہے۔ اب خان صاحب ہی تجزیہ کریں کہ وہ چور ہیں یا پہلے چور تھے۔ دہائی اتنی دیتے ہیں کہ کرپشن ہے، ایک بندے کو ابھی تک انہوں نے پکڑا نہیں ہے، ایک بندے سے کچھ انہوں نے حاصل نہیں کر سکے اور ملک کو کا تہس نہس کر دیا ہے۔ مہنگائی آئے روز بڑھ رہی ہے، کاروبار بالکل ٹھپ ہیں، تو ہمیں تو سمجھ سے باہر ہے کہ کیا بنے گا اس ملک کا۔ اچھا عظیم صاحب، یہ بتائیے گا کتنی چیزیں مزید مہنگی ہو رہی ہیں حالیہ اگر بات کی جائے مہنگائی کی، اور دوسرا خان صاحب تو ابھی میسج دے رہے ہیں کہ صبر کریں آپ کو چیزیں سستی ملیں گی۔ جی صبر کیا کرنا ہے، 5 سال ٹوٹل ہے ان کے پاس، 2.5 سال ایسے ہی گزر گئے ہیں، بلکہ جو 2.5 سال ہم نے یہ گزارے ہیں، میں پچھلے 20 سال سے بزنس کر رہا ہوں، میں نے اتنا برا دور کبھی نہیں دیکھا۔ مشرف کے دور سے اچھا دور کبھی نہیں کاروباری نے دیکھا اور ان کے دور سے برا نہیں دیکھا، ٹھیک ہے جی۔ تو مہنگائی ہر چیز ہی مہنگی ہو گئی ہے، خریدار ہے کوئی نہیں، چیزیں پیسے لے کے جائیں مارکیٹ میں ملتی نہیں ہیں، مہنگائی آئے روز بڑھ رہی ہے، ایک ہوا سا بنا ہوا ہے، پتہ نہیں اس ملک میں بنے گا کیا۔ اس بات سے تاجر بہت پریشان ہیں۔ جی بالکل، اس طرح کی بات سنی اور ان کا کہنا ہے کہ تاجر برادری اچھی خاصی پریشان نظر آ رہی ہے اور ایک ہی کہنا ہے کہ اس حکومت کی وجہ سے جو ہے کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، لیکن حالیہ جو ہے ایک بار پھر مہنگائی جو ہے آنے والی ہے، لیکن حکومت کی جی بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ جھنگ میں ضلع انتظامیہ ماحول کو آلودہ ہونے سے بچانے کے لیے متحرک ہو گئی ہے۔ 194 بھٹے زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل۔ ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں بھٹا مالکان حکومت کی جانب سے دی جانے والی سبسڈی سے فائدہ اٹھائیں اور ملک کو آلودگی سے پاک کر دیں۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف جھنگ وسیم احمد سے۔ جی وسیم، بتائیے گا۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ فیاض ماحول کی زیر صدارت ماحولیات کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد سرور، ADCR شاہد جوئیہ اور محکمہ ماحولیات کے افسران سمیت دیگر متعلقہ اداروں کے افسران نے شرکت کی۔ اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر جھنگ نے بتایا کہ ضلع کے اندر 220 میں سے 194 بھٹے جو ہیں وہ نئی زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل ہو چکے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ضلع کے اندر کوئی بھی جو پرانی ٹیکنالوجی پر بھٹا کام کر رہا ہے اس کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر اس کے خلاف کوئی کام کرے گا تو ان کو سخت سے سخت کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب جو ہے زگ زیگ ٹیکنالوجی پر بھٹے منتقل کرنے کے لیے جو سبسڈائز قرضے دے رہی ہے اس سے تمام مالکان جو ہے بھٹا مالکان فائدہ اٹھائیں اور ملک کو آلودگی سے پاک کرے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے اس کے علاوہ جو گاڑیوں کا دھواں ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو فصلیں جلائی جاتی ہیں، کچرا جلایا جاتا ہے، ان پر بھی کنٹرول کر کے شہر کو آلودگی سے پاک کریں۔ بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک میں پاکستان کا 10واں نمبر ہے۔ محکمہ زراعت کی جانب سے مدافعتی بیج تیار کرنے کے لیے ایوب ریسرچ سائنسدانوں کو ٹاسک سونپ دیا گیا ہے۔ فصلات اور پھولدار پودوں کے موسمیاتی تبدیلیوں سے مقابلہ کرنے والے بیج تیار کیے جائیں گے۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ سٹی 41 سے۔ جی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک میں پاکستان کا 10واں نمبر ہے، تو اس حوالے سے یہاں پر محکمہ زراعت کی جانب سے ایوب ریسرچ کو اسپیشل ٹاسک سونپا گیا ہے کہ یہاں پر ایسے بیج تیار کیے جائیں جو کہ بہتر قوت مدافعت رکھیں
क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो पुराने बीज है वो इस काबिल नहीं रहे कि अच्छी फसल दे सके। तो अब यहाँ पर ये टास्क दिया गया है कि जितनी भी फसलात हैं, जितनी भी मुख्तलिफ पौधे हैं, इन तमाम के ऐसे बीज तैयार किए जाएँ जो अच्छी फसल दें। इसी तरह से जो गंदम है स्पेशल या कमाद है, धान की फसल है, ये बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। मकई की फसल भी मुतासर होने वालों में शामिल है। तो यहाँ पर इनके ऐसे हाइब्रिड बीज तैयार किए जाएंगे कि जिन पर मौसमियाती तब्दीलियों का असर कम हो सके, जो बेहतर पैदावार दे सके और जो किसान का नुकसान है वो कम से कम कर सके। तो इसके लिए टास्क दिया गया है कि कम से कम 50 से ज़्यादा इकसाम तैयार की जाएँ, फिर उसकी पंजाब सीड कौंसिल से मंजूरी ली जाए और फिर किसानों को फराहम की जाएँ, ताकि अगले 2 से 3 वर्ष में जो नुकसानात ज़्यादा हो रहे हैं महकमा ज़राअत को, काश्तकारों को, वो कम किए जाए। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान का 10वां नंबर है। अब्दुर्रहमान आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी रुख करेंगे चकझुमरा का। चकझुमरा के मकीनों के लिए अच्छी खबर है। खबर यह है कि हस्पताल को अपग्रेड किया जाएगा। THQ हस्पताल के 60 बेड्स को 120 बेड्स पर तोसी दी जाएगी। आपको बता रहे हैं झुमरा के मकीनों के लिए अच्छी खबर है। THQ हस्पताल के 60 बेड्स को 120 बेड्स पर तोसी दी जाएगी। तोसी मंसूबे के लिए 32 मिलियन की ग्रांट जारी कर दी गई है। आपको बता रहे हैं तोसी मंसूबे के लिए 32 मिलियन की ग्रांट जारी कर दी गई है। THQ हस्पताल के 60 बेड्स को 120 बेड्स पर तोसी दी जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि झुमरा के मकीनों के लिए अच्छी खबर है। THQ हस्पताल के 60 बेड्स को 120 बेड्स पर तोसी दी जाएगी। तोसी मंसूबे के लिए 32 मिलियन की ग्रांट जारी। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि झुमरा के मकीनों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। THQ हस्पताल के 60 बेड्स को 120 बेड्स पर तोसी दी जाएगी। तोसी मंसूबे के लिए 32 मिलियन की ग्रांट जारी कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं झुमरा के मकीनों के लिए अच्छी खबर है। THQ हस्पताल के 60 बेड्स को 120 बेड्स पर तोसी दी जाएगी। तोसी मंसूबे के लिए 32 मिलियन की ग्रांट जारी कर दी गई है। हस्पताल की अपग्रेडेशन के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। THQ हस्पताल के 60 बेड्स को 120 बेड्स पर तोसी दी जाएगी। तोसी मंसूबे के लिए 32 मिलियन की ग्रांट जारी कर दी है। आपको बता रहे हैं तोसी मंसूबे के लिए 32 मिलियन की ग्रांट जारी की गई है। 60 बेड्स को 120 बेड्स पर तोसी दी जाएगी। THQ हस्पताल की अपग्रेडेशन के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। झुमरा के मकीनों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। THQ हस्पताल के 60 बेड्स को 120 बेड्स पर तोसी दी जाएगी। तोसी मंसूबे के लिए 32 मिलियन की ग्रांट जारी कर दी गई है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि झुमरा के मकीनों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। THQ हस्पताल के 60 बेड्स को 120 बेड्स पर तोसी दी जाएगी। तोसी मंसूबे के लिए 32 मिलियन की ग्रांट जारी कर दी। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि THQ हस्पताल के 60 बेड्स को 120 बेड्स पर तोसी दी जाएगी। तोसी मंसूबे के लिए 32 मिलियन की ग्रांट जारी। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि झुमरा के मकीनों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। THQ हस्पताल के 60 बेड्स को 120 बेड्स पर तोसी दी जाएगी। तोसी मंसूबे के लिए 32 मिलियन की ग्रांट जारी। झुमरा के मकीनों के लिए अच्छी खबर है। खबर यह है कि THQ के हस्पताल को अपग्रेड किया जाएगा। 60 बेड्स को 120 बेड्स पर तोसी दी जाएगी। तोसी मंसूबे के लिए 32 मिलियन की खतीर रकम जो है वो मुख्तस कर दी गई है। ग्रांट भी जारी कर दी गई है। आपको बता रहे हैं झुमरा के मकीनों के लिए अच्छी खबर यह है कि THQ हस्पताल की अपग्रेडेशन की जाएगी और अपग्रेडेशन में 60 बेड्स को 120 बेड्स पर तोसी दी जाएगी, जबकि तोसी मंसूबे के लिए 32 मिलियन की ग्रांट जारी की गई है। झुमरा के THQ हस्पताल के 60 बेड्स को 120 बेड्स पर तोसी दे दी जाएगी। तोसी मंसूबे के लिए 32 मिलियन की ग्रांट जारी कर दी गई है। ग्रांट के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। तोसी मंसूबे के लिए 32 मिलियन की खतीर रकम जो है वो मुख्तस कर दी गई है। साथ ही ग्रांट जारी कर दी गई है। 60 बेड्स को 120 बेड्स पर तोसी दे दी जाएगी। झुमरा में THQ हस्पताल की अपग्रेडेशन का ये मामला है। 60 बेड्स को 120 बेड्स पर तोसी दी जाएगी, जबकि 32 मिलियन की ग्रांट से ये तोसी मुकम्मल होगी। आपको बता रहे हैं 32 मिलियन की ग्रांट जारी की गई है, जिसके हवाले से ये तोसी मुकम्मल होगी। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं आज़ादार हुसैन। आज़ादार हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। और गिरदनवाह के मकीनों के लिए अच्छी खबर है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से फंड्स जो हैं वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तक झुमरा के लिए जारी कर दिए गए, क्योंकि तोसी मनसूबे के लिए फ़ंड्स जारी नहीं किए जा रहे थे, जिसके बाद तोसी जो मनसूबा था वो ताख़ीर का शिकार था। मगर अब हुकूमत की जानिब से जो है फंड जारी कर दिए गए। कितने फ़ंड जारी किए गए हैं और अब मनसूबा कब मुकम्मल होगा? हमारे साथ सिविल फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक शिप्रा साहब मौजूद हैं। सर बताएँ क्या? देखें जी, हमें स्पेशली जो THQ झुमरा है उसकी अपग्रेडेशन में
कमिश्नर साहब की बड़ी सपोर्ट हासिल थी। उन्होंने ये स्कीम मुकम्मल ना होने पे एक स्पेशल विज़िट किया और जब उसमें हमने बताया कि इसका 32.4 मिलियन की अमाउंट रिमेनिंग है, वो भी अमाउंट रिलीज़ हो गई है। अभी हम बिल्डिंग डिपार्टमेंट से रजू करेंगे कि इस स्कीम को अर्लीस्ट पॉसिबल जो है वो मुकम्मल कर दें, ताकि वो सारी जो है रिमेनिंग 60 बेड जो है पब्लिक की सर्विस के लिए हम इस्तेमाल कर सकें। तो सर अब ये टोटल कितने बेड पे हो जाएगा हॉस्पिटल? ये पहले 60 बेड का है जी, 120 बेडेड हॉस्पिटल हो जाएगा। वो उसके बहुत छोटे छोटे काम रहते थे और होपफुली ये अमाउंट रिलीज़ हो गई है, तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी भी जल्दी हो सके इसको मुकम्मल करें, ताकि वो हेल्थ डिपार्टमेंट के हैंड ओवर हो सके और हम उस पर काम शुरू कर दें। जब बिल्कुल उसके ऊपर जो काम मरीजों की बेहतरी के लिए शुरू किया जा सके, ताहम बताया जा रहा है कि 32 मिलियन की जो ग्रांट थी वो हुकूमत की जानिब से जारी की गई है। जी बहुत शुक्रिया ज़ादार हुसैन, हमें अपडेट। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, चिन्योट बासर जमींदार का कोट खुदायार में जमीन के तनाज़े पर मुखालिफिन के घर को मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मुतासरा खातून ने कहा कि बासर जमींदार ने अपने साथियों के हमरा मिलकर हमारे घर को आग लगाई, जिससे बेटी की जहेज का सारा कीमती सामान जलकर खाकस्तर हो गया है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है बाबर मुनीर ने। बाबर मुनीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, थाना सदर का इलाका है कोट खुदायार, जहाँ पर ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। बासर जमींदार है जिसने जो यहाँ पर मुद्दईयान हैं उनके घर में जो है वो धावा बोला है और 10 नामालूम जो है वो उनके साथ लोग थे जिन्होंने पेट्रोल छिड़क कर उस सारे घर को जो है वो आग लगा दी है। इस वक्त जो मुतासरीन हैं वो थाना सदर के बाहर मौजूद हैं और पुलिस से कार्रवाई का जो है वो मुतालबा किया जा रहा है। मोहतरमा, किस तरह ये सारा वाक़या पेश आया, क्या मुतालबा करेंगे? भाई से पहले हम कोट खुदायार में रहते थे, वहाँ जो मोहम्मद अली शाह है ना, वहाँ का सरदार है। पहले हमने कहीं और जगह दी हुई थी, पहले हम वहाँ रहते थे, वहाँ से हमें ज़बरदस्ती निकाल दिया गया है। उसके बाद फिर हमने कोट खुदायार अड्डे के पीछे घर बनाया, वहाँ हम 30-35 साल हो चुके हैं। हमें वहाँ से निकालने के लिए, कब्जे करने की धमकी दे रहे थे। फिर हमारे घर है उसका बेटा मोहम्मद नवाज शाह, उसके साथी कुछ साथ उसके भाई थे, उसके मामू थे, साहब थे। उन्होंने पेट्रोल छिड़का, बोतलें उसके हाथ में थी, गैलन थी, उसके बाद पिस्टल थे, जोर जबरदस्ती हमारे पर कब्जा किया। बदमाश किस्म के लोग थे जो गैर मालूम थे, जो नहीं पहचान में थे। उन्हें मर करके सोना, जेवर, पैसे टायर उन्हें दे दिए और एक लफू चक्कर हो गए। जो बाकी थे, नवाज ने घर को आगे छिड़ कर लगाई, हमें जबरदस्ती वहाँ से निकाल दिया और कहा कि जो भी मिला हमें उसे कत्ल कर देंगे, जान से मार देगा। हमारे घर में पुलिस ने कोई अभी तक कार्रवाई की है, क्या मुतालबा करें? पुलिस वालों को हमने FIR दी है, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वो सरदार गाँव का बड़ा, इसलिए कार्रवाई करना नहीं चाहता। उसके हक में गाँव वाले भी गवाही नहीं देना चाहते। बिल्कुल जी, चूंकि वो बंदा जो है वो बासर जमींदार है और पुलिस की जानिब से भी सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन मुल्जमान को गिरफ्तार जो है वो नहीं किया गया। मुतासरा जो खतून है पलवशा खान, उसकी आपने सारी बात सुनी है। बासर जमींदार है जो घर पर उसने दावा बोला है और फिर ज़मीन पर जगह पर कब्जा करने की जो है वो कोशिश की है और जो जहेज़ का सामान था वो भी जलकर जो है वो कमरों में खाकिस्तर हो गया। वहीं पर जो मुतासरा खतून है वो मुतालबा कर रही है IG पंजाब से, RPO फैसलाबाद से कि उनके वाक़े का नोटिस लिया जाए और बासर जमींदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि प्रमोशन पॉलिसी को मद्देनजर रखने की हिदायत कर दी गई है। 2017 की प्रमोशन पॉलिसी को मद्देनजर रखने की हिदायत की गई है। तरबियती सेंटर्स, पंजाब कांस्टेबलरी के कमांडेंट्स और रीजनल पुलिस सरबराहान क्लरिकल स्टाफ की तरक्की के लिए कमेटी के सरबराह होंगे। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा तैयब मकबूल से। जी तैयब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, IG पंजाब की जानब से प्रमोशन के हवाले से जो पॉलिसी 2017 में जारी की गई थी, मौजूदा IG पंजाब की जानब से ये हिदायत जारी की गई है कि प्रमोशन के मामले पर 2017 में जारी की जाने वाली पॉलिसी को ही मद्देनज़र रखा जाए। IG पंजाब की जानब से दोबारा से अहकाम जारी करते हुए कहा कि 2017 में उस वक़्त के जो IG पंजाब थे उनकी जानब से तमाम क्राइटेरिया तय कर दिया गया था कि किस स्केल का जो क्लरिकल स्टाफ का एहलकार होगा, इसी के साथ साथ जो जनरल ड्यूटी करने वाले यूनिफॉर्म वाले पुलिस एहलकार है, किस स्केल के एहलकार की तरक्की के लिए कौन सा प्रमोशन बोर्ड बनाया जाएगा और किस स्केल का ऑफिसर उस प्रमोशन बोर्ड का हेड होगा। IG पंजाब का कहना था कि खास तौर पर क्लरिकल स्टाफ की जो तरक्की है उनके मामले पर प्रमोशन बोर्ड पॉलिसी के मुताबिक ही होना चाहिए। उनका ये कहना था कि जो ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं उनमें और इसी के साथ साथ पंजाब कांस्टेबल फर्रुखाबाद और जो मौजूदा RPOs हैं रीजन के, वो ही प्रमोशन बोर्ड के हेड होंगे। क्लरिकल स्टाफ की जो तरक्की है उनका अमल उनकी जानब से मुकम्मल किया जाएगा। IG पंजाब का कहना था कि प्रमोशन का अमल पंजाब भर में जारी है, छोटे बड़े तमाम एहलकार अफसरान की प्रमोशन की जा रही है, पर उनके मामले पर जो भी प्रमोशन बोर्ड बनाया जाए या डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी बनाई जाए उसको बनाने से कबल 2017 की प्रमोशन पॉलिसी को मद्देनजर रखा जाए। जी
नजर रखा जाए। तैयब मकबूल आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपने बताया कि महकमा कस्टम्स के गैर क्लैरिकल और फील्ड स्टाफ की तरक्कियों के लिए 2017 की प्रमोशन पॉलिसी को मद्देनजर रखने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब महकमा कस्टम्स का गैर कानूनी सिगरेट की फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला सामने आया है। पकड़े जाने वाले सिगरेट नीलामी की बजाय तल्फ किए जाएंगे। नीलामी पर पाबंदी से स्मगल शुदा सिगरेट की नकलो हरकत पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। गैर कानूनी तौर पर सिगरेट फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया है और इस हवाले से कवानीन में भी तब्दीली कर दी गई है। जो स्मगल शुदा या नॉन कस्टम पेड सिगरेट पकड़े जाएंगे तो उनकी नीलामी नहीं की जाएगी बल्कि उन्हें तल्फ कर दिया जाएगा। इसी तरह जो स्मगल शुदा सिगरेट है या उसकी ऑक्शन शुदा है जिसकी कस्टम की जानिब से नीलामी की जाती है तो उसकी नकलो हरकत पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है कस्टम हुकाम के मुताबिक। इस हवाले से जो मुलजमान हैं या इस धंधे से मुलव्विस लोग हैं उनकी जानिब से नीलामियों के जाली कागजात बनाए जाते थे, फिर उन्हीं कागजात की बुनियाद पर इन सिगरेट्स की एक शहर से दूसरे शहर तक मुंतकिली की जाती थी। तो इसी वजह से उनकी नीलामी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है ताकि इन अफराद के पास इस किस्म का कोई जवाज़ ही ना रह सके कि ये सिगरेट जो है वो कस्टम से नीलामी में खरीदे गए हैं और इनको दूसरे शहरों में लेकर जाया जा रहा है या मुंतकिल किया जा रहा है। तो इस हवाले से नॉन कस्टम पेड और स्मगल शुदा सिगरेट की फरोख्त को मुकम्मल तौर पर रोकने के लिए ये इकदाम उठाया गया है कि उनकी जो नीलामी है उस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और जो भी सिगरेट पकड़े जाएंगे वो जब्त करके उन्हें तलब कर दिया जाएगा, जिसका मकसद ये है कि मुल्क से जो नॉन कस्टम पेड और टैक्स चोरी का खात्मा कल्चर है उसको खात्मा करना है और सिगरेट का जो कारोबार है उसको मुकम्मल तौर पर कानून के दायरे में लेकर आना है। जी उमैर अजमत आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दीगर खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं सिंध के सेक्रेटरी ज़राअत अब्दुल रहीम सोमरो की वफ्द के हमरा ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद आमद। मुल्क में ज़राई मसाइल के हल के लिए वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ तनवीर और दीगर फैकल्टी मेंबरान से मीटिंग। किसानों के मसाइल हल करने के लिए रिसर्चर्स के काम को आम करने पर इत्तेफाक किया गया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, सिंध में ज़राअत के हवाले से किस तरह से अपग्रेड किया जा सकता है, किसानों के मसाइल को किस तरह हल किया जा सकता है और ज़राई यूनिवर्सिटी क्या काम कर रही है एग्रीकल्चर के हवाले से, उस पर डिस्कशन के लिए सिंध से एक वफद यहाँ पर मौजूद है ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, जिसमें सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मौजूद हैं, डीजी एग्रीकल्चर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि सिंध के हवाले से और यहाँ पर जो फैसलाबाद में ज़राई यूनिवर्सिटी काम कर रही है, क्या आज मुशावरत हुई, किस तरह से इसको म्यूचुअल एक दूसरे की मुशावरत से आगे लेकर चला जाएगा और कौन ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें फ्यूचर में ताउन हो सकता है सिंध और फैसलाबाद की इस ज़राई यूनिवर्सिटी का। अब्दुल रहीम सोमरो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बताइएगा कि सिंध के हवाले से एग्रीकल्चर और ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद आज डिस्कशन हुई, मीटिंग हुई, कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे सामने आए जिसमें मुश्तरका तौर पर चला जा सकता है और यहाँ की रिसर्च से बेनिफिट हासिल करके किसानों तक पहुँचाया जा सकता है, या ज़राई मुल्क होने के नाते हम पाकिस्तान में ज़राअत के फ़रोग़ के लिए क्या क्या इक़दाम उठा सकते हैं? बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। हम शुक्रगुज़ार हैं ज़राई यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर, उनके वीसी और उनके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, उन्होंने आज हमें टाइम दिया और हमारे डेलीगेशन में मिस्टर हिदायतुल्लाह छजुड़ो साहब डीजी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, मिस्टर नूर मोहम्मद बलोच साहब डीजी रिसर्च मौजूद हैं। हमने जो यूनिवर्सिटी की जो अचीवमेंट्स हैं और जो रिसर्च की इनोवेशंस है वो हमने सारी देखी और बहुत बड़ा काम हुआ है और हमें फ़ख्र है कि हमारे मुल्क में ये सारी इनोवेशन और रिसर्च हो रही हैं। हमारा जो इशू मेन है वो फूड सिक्योरिटी का है और जो हमारे जो इदारे हैं, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो हम कर रहे हैं कि ताकि हम लोगों की पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ने से जो हमारे इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, ये सारी रिसर्च इनोवेशन उसके कॉन्टेक्स्ट में है। तो मैं बहुत हम मुतमईन हुए हैं और हम ये चाहेंगे कि ये जो रिसर्च और इनोवेशन है इनका जो कोलैबोरेशन है वो मैनेजमेंट के साथ भी हुआ जाए। बीइंग ए सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट, तो हम चाहेंगे कि जो इनकी रिसर्च का से हम फ़ायदा उठाएं। और दूसरा, हमने इनसे ये रिक्वेस्ट की है कि हमारे साथ जो एक कोलैबोरेशन हो कि इनकी रिसर्च और इनोवेशन हमारे साथ शेयर हो और हम भी अपने डेलीगेशंस भेजें और इनके भी डेलीगेशन आए ताकि सिंध में हम उसी चीज़ को ट्रांसलेट कर सकें ताकि आम ग्रोअर के लिए फ़ायदा मंद हो।
سر یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے آپ نے ڈسکس بھی کیا کہ اکثر یونیورسٹیز کی ریسرچ بہت اچھی ریسرچ بھی ہو رہی ہو لیکن وہ اگر کسان تک نہ پہنچے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. گورنمنٹ لیول پر آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے کہ اس طرح کی ریسرچ کو کسان تک پہنچایا جائے؟ تو گورنمنٹ کا فیوچر میں یا کیا کوئی پلان ہے ایسا کہ تاکہ یونیورسٹیز میں ہونے والی تحقیق کو جو اصل اس کا حقدار ہے کسان اس تک پہنچایا جائے تاکہ رزلٹ جو ہے الٹیمیٹلی وہ بیٹر ہوں؟ دیکھیں یہ ہم مانتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی ہے اور بینگ سیکرٹری ٹو دا گورنمنٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فرض ہے کہ ریسرچ جو یونیورسٹیز میں ہو رہی ہے اس کو پالیسی میں ہم حصہ بنائیں. جی بہت شکریہ. آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے جہانگیر اشرف. آپ کو بتائیں کہ فیسکو ہیڈ کوارٹر میں عہدیداران کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. فیسکو ہیڈ کوارٹر میں ملازمین کے حق کی خاطر آواز بلند کرنے والے پیغام یونین عہدیداران کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. اس حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے اویس علی سے. جی اویس، اپڈیٹ کیجیے گا. آج بالکل اسلام آباد میں ملازمین کے حق کی آواز بلند کرنے والے پیغام یونین کے عہدیداران کے حوالے سے جو ہے وہ آج اعزازی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پیغام یونین کے عہدیداران نے شرکت کی اور اسلام آباد میں ملازمین کی حق کی آواز بلند کرنے والے جو پیغام یونین کے عہدیداران ہیں ان کو ہار بھی پہنائے گئے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ میاں افتخار موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. اچھا سر، ہمیں یہ بتائیے گا کہ پیغام یونین کی جانب سے اسلام آباد میں ملازمین کے حق کی آواز اٹھائے گی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمر توڑ مہنگائی کے بعد عرصہ دراز سے وابڈا کے اور فیڈرل اور دوسرے ملازمین اس کوشش میں تھے کہ مہنگائی کا کسی نہ کسی طرح کوئی توڑ کروایا جائے، لیکن پچھلے بجٹس میں کوئی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئی، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی. الحمدللہ پیغام یونین نے تمام پاکستان کی یونینز کو اکٹھا کیا اور بھرپور کردار ادا کیا کہ تنخواہیں بڑھائی جائیں. اس میں ہم افسوس سے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے محکمے کی ہائیڈرو یونین بھی اس دن اس مظاہرے میں ہمارے کاز میں شامل ہوتی تو آج ہم 25% اضافے کی بجائے 40% اضافے کا ذکر کر رہے ہوتے. بہرحال جی بہت شکریہ. آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. وقت ہوئے بریک. ہمارے ساتھ رہیے. احمد پور سیال میں کمپنیوں کی نجکاری کے خلاف وابڈا ہیڈرو ورکرز یونین کا احتجاجی مظاہرہ. مظاہرین کی جانب سے نجکاری نامنظور نامنظور کے نعرے. آپ کو اپڈیٹ کریں احمد پور سیال سے کمپنیز کی نجکاری کے خلاف وابڈا ہائیڈرو ورکرز یونین کا احتجاجی مظاہرہ. مظاہرین کی جانب سے نجکاری نامنظور نامنظور کے نعرے. آپ کو بتا رہے ہیں نجکاری نامنظور نامنظور کے نعرے لگائے جا رہے ہیں مظاہرین کی جانب سے، جبکہ احمد پور سیال میں کمپنیز کی نجکاری کے خلاف وابڈا ہائیڈرو ورکرز یونین کا احتجاجی مظاہرہ جاری ہے. اس وقت سٹی 41 کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں احمد پور سیال میں کمپنیز کی نجکاری کے خلاف وابڈا ہائیڈرو ورکرز یونین کا احتجاجی مظاہرہ جاری ہے. مظاہرین کی جانب سے نجکاری نامنظور نامنظور کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ احمد پور سیال میں کمپنیوں کی نجکاری کے خلاف وابڈا ہائیڈرو ورکرز یونین کا احتجاجی مظاہرہ جاری ہے. مظاہرین کی جانب سے نجکاری نامنظور نامنظور کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ کمپنیوں کی نجکاری کے خلاف وابڈا ہائیڈرو ورکرز یونین کا احتجاجی مظاہرہ جاری ہے. مظاہرین کی جانب سے نجکاری نامنظور نامنظور کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. ابھی آپ کو فیصل آباد سے میچ کا احوال بتائیں گے. آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ فیصل آباد میں آل پاکستان دوسرا چودھری تنویر الرحمان رندھاوا میموریل کی افتتاحی تقریب اقبال اسٹیڈیم میں جاری ہے، جس میں پاکستان وکلاء، جج صاحبان اور ضلعی انتظامیہ کے عہدیداران کی شرکت سامنے آئی ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندہ علی رضا سے. جی علی، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. بولیٹن میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا.